کہاں، کس نے، کیسے، کیوں کیا؟ سچ دکھانا اور بولنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ حقائق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیکرٹس انفولڈڈ وتھ شیراز نثار۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شیراز نثار۔ آج میں اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ایسے گروپس چل رہے ہیں جن میں شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سب لوگ شامل ہیں، لیکن وہ خوش قسمتی سے سب تعلیم یافتہ ہیں اور کسی بھی ٹاپک پر ڈسکشن کرنے سے پہلے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے مینرز اور ایتھکس کے باہر نہیں جانا۔ وہ لاجیکلی سوال کرتے ہیں اور آخر کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے، اسی کو ہم سولوشن بیسڈ جرنلزم بھی کہتے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ I Shiraz Nisar have been associated with the field of journalism 1995 and I am MSc Mass Communication, MA Political Science, LLB and MPhil Mass Communication۔ یہ بتانے کا آپ کو مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بھی جو پروگرام کرتے ہیں اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس میں حقائق ہوں، انویسٹیگیشن کی جائے، ڈگ آؤٹ کیا جائے کہ سچ کیا ہے، کیوں ہمارے معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر بلاج مذہب کے دوست ظفر خان، جس تیفی بٹ اور امیر مذہب گروپ میں صلح کے حوالے سے دبئی میں ایک بیٹھک ہوئی ہے۔ کیسر بٹ جو لاہور سے گیا، امیر مذہب سے ملاقات ہوئی، ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی۔ امیر بلاج کے دوست ظفر خان آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ جو بیٹھک دبئی میں ہوئی ہے اس کے حوالے سے ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے، کیا صلح جو ہے وہ پروان چڑھنے والی ہے؟ ظفر صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے۔ جو وفد ادھر گیا ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے مزید انتشار پیدا ہو۔ صلح اچھا اقدام ہے اور نیت صاف رکھ کر انسان کو چلنا چاہیے تاکہ ان دونوں گھرانوں میں جو قتل و غارت ہوئی ہے مزید آگے قتل و غارت نہ ہو سکے، جس سے یہ ہے کہ اگر ہم احساس کریں گے نا تو ہمیں نیوٹرل ہو کر دونوں گھروں کا احساس کرنا چاہیے۔ ہمدردیاں ساری میری ہیں ٹرک اڈا والوں کی طرف سے۔ بات صلح کی جو چل رہی ہے اس لیے کوئی ایسی ہم بات نہیں کرتے جس سے ہماری بات سے کوئی مزید انتشار پیدا ہو جائے۔ میری درخواست ان بھائیوں سے بھی ہے جو بیچ میں صلح میں پڑے ہوئے ہیں، تو مودبانہ گزارش ہے کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے شر پیدا ہو۔ یہ بہت ہی اہم بات کی ہے ظفر نے، جس طرح ہم بھی اپنے ہر ویلاگ میں یہ بات کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں یا باقی بھی جو لوگ وہاں پہ کمنٹس کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان کو بائسڈ ہو کر نہ دیکھیں، کسی ایک گروپ کی طرفداری نہ کریں اور صلح کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ جاوید بٹ کے قتل کے بعد جس طرح کیسر بٹ نے پہلے عبوری ضمانت کرائی، اس کے بعد وہ پیش ہوا 6 نومبر کو دوبارہ عدالت میں پیش ہوگا، جبکہ امیر فتح نے بھی اپنی عبوری ضمانت کرائی اور 2 نومبر کو امیر فتح بھی پیش ہوگا۔ میں آپ کو یہ بریکنگ بھی بتاتا چلوں کہ امیر فتح بھی پینل آف آفیسرز کے سامنے پیش ہو گیا اور اس نے بھی یہ انکشاف کیا، جو اپنا بیان دیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب جاوید بٹ کا کینال روڈ پر قتل ہوا تو اس وقت امیر فتح اپنے گھر پر موجود تھا، اس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی بیان کیسر بٹ نے دیا، اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اس وقت اپنے گھر موجود تھا، باغوان پورہ کے علاقے جو لکھو ڈیر ہے گاؤں مناوا کے علاقے میں وہاں پر موجود تھا۔ تفتیش کے حوالے سے جو دونوں ایس پی ہیں رانا زاہد اور شہزاد رفیق افان، ان کا مشترکہ طور پر یہ کہنا ہے کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر کی سربراہی میں جو میرٹ پر تفتیش کی جا رہی ہے اس میں کسی بھی گناہ گار کو بے گناہ نہیں کیا جائے گا اور جو بے گناہ ہوگا اس کو گناہ گار نہیں لکھا جائے گا۔ ظفر ہمارے ساتھ موجود ہے، جس طرح بہت اچھی بات کی ظفر، پہلے بھی ایسے ہوا، ٹیپو ٹکا والے کی زندگی میں بھی صلح کی کوشش ہوئی لیکن بہت سے دائیں بائیں لوگ بیٹھنے والے جو ہیں انہوں نے یہ صلح نہیں ہونے دی۔ اور اس میں بڑی ایک اہم بات ہے جو میں ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیپو ٹکا والے کی بھی صلح میں بہت سے لوگ شامل تھے اور صلح ہونے والی تھی، لیکن اس کے بعد کچھ ٹیپو کے قریبی لوگ اور کچھ تیفی بٹ کے قریبی لوگ، یہ میں آج انکشاف کر رہا ہوں، جو تیفی بٹ کے ساتھ عرصہ دراز تک رہے، انہوں نے تیفی بٹ کو یہ کہا کہ آپ کے بیٹے کو مروانے کی پلاننگ کی گئی ہے۔ جس جگہ پہ تیفی بٹ کا بیٹا موجود تھا وہاں سے ایک گاڑی بھی گزری اسی وقت جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس گاڑی میں شوٹرز موجود تھے اور اسلحہ بھی موجود تھا جو آپ کے بیٹے کو مارنے کے لیے وہاں پر پہنچا۔
अब फिर बलाज की जब बारी आई तो फिर सुलह करीब थी, जबकि फिर पास बैठने वाले लोगों ने ये सुलह नहीं होने दी। हम भी ये वीडियो बनाते हैं और इस तरह के वीलॉग करते हैं कि ताकि दोनों ग्रुप जो है वो हकायक जाने और खुद इस बात का इनिशिएटिव लें। जिस तरह मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम्स में ये कहा कि मसहब, अमीर मसहब को इस वक्त ये चाहिए कि अपने भाई अमीर फतेह और खासकर जो अपने दो दादे हैं सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू और बई पहलवान, उनके बेटे हसन पहलवान को अपने साथ बिठाएं और खासकर अपनी वालदा से मशवरा करें, उसके बाद कोई भी फैसला करें। चूंकि पहले भी 2 बार सुलह की कोशिश हुई जो नाकाम हुई, जफर अब फिर सुलह की कोशिश हो रही है। दुबई जो कैसर भट्ट की सरबराही में एक ग्रुप गया है जिसकी वीडियो भी हमारे सामने आई है, मसहब के साथ बैठकर नाश्ते की टेबल पे कैसर भट्ट ने एक वीडियो भी जारी की है। सबसे पहले हम नाज़रीन को वो वीडियो दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने की टेबल पर हम भाई इकट्ठे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसा ही प्यार मोहब्बत होना चाहिए। देखें मेरा भाई अभी कुंवारा है तो तलाशे रिश्ता और अच्छा रिश्ता चाहिए, मजाक नहीं कर रहा। और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा प्लीज, मेहरबानी। अच्छा बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुनी कैसर भट्ट की वो बात जो अमीर मसहब के साथ बैठकर बैरून मुल्क दुबई से उसने ये अपना वीडियो बयान जारी किया। अब इस वीडियो बयान में भी कई ज़ूमानी बातें हैं, जिस तरह जफर ने भी कहा और मैं भी ये कह रहा हूँ कि इस तरह की कोई भी ज़ूमानी बात नहीं करनी चाहिए जिससे ये सुलह की राह में फिर रुकावटें खड़ी हों। कैसर भट्ट जिस पर पहले भी ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि उसकी वजह से सुलह नहीं हो सकी, उसे ये चाहिए कि अगर उसकी सरबराही में ये ग्रुप वहां पर गया है तो अपने ऊपर लगे इल्जाम धोए और उस सुलह में अहम किरदार अदा करें। जफर साहब क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले हम पीछे चले जाते हैं। मेरा कहना यह है कि जो दुश्मनदार होता है ना, बड़ा आदमी जिसके नुकसान हुए हो, जिसके घर से नुकसान किए या उनके घर के नुकसान हुए, उन्हें कम से कम कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए। पहले मार्केट में बात ये आई थी टीपू पहलवान को, जो उन्होंने उनका नुकसान किया कि इस बात पे कि टीपू मेरे बेटे का नुकसान करने लगा था, तो उसमें उनको टीफी को किसने कहा? टीफी को उसने कहा मलक एहसान ने। मैं नाम ले देता हूँ, मलक एहसान का टीफी ने अब तक क्या किया है? हम कैसे मान लें कि ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं आप? क्या आपके पास कोई सबूत है? मार्केट में बात क्या है? मार्केट में बात यही चल रही है ना कि नुकसान टीपू पहलवान टीफी भट्ट के बेटों का नुकसान करने लगा था। उसको ये बात किसने की और किसके बात उसने मानी? मलक एहसान उसका चहेता था टीफी भट्ट का, उसने उनको कहा कि टीपू पहलवान तेरे बच्चे का नुकसान करने लगा। चलो मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता, तो इस बात में टीफी भट्ट ने टीपू का नुकसान कर दिया। और दूसरी बात आप ये है ना कि मलक एहसान का इस वक्त टीफी ने क्या किया? उसके बाद तो उससे पता चल गया टीफी पहलवान को कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने वो भी जहर का प्याला पिया और बलाज का भी उसने जहर का प्याला पिया। दूसरी बात ये है कि बीच में आ जाते हैं कैसर भट्ट जो वफद लेकर गए हैं। मेरी कैसर भट्ट साहब से दरख्वास्त है, भट्ट साहब कोई ऐसी मुंह से बात ना करें कि जिससे शर पैदा हो। अगर आपके ऊपर कुछ इल्जामात लग रहे हैं या आप उसमें सच्चे हैं या झूठे हैं, ये खुदा को पता है और आपको पता है। आपको अल्लाह ताला ने अब ये एक मौका दिया है, बीच में अगर आप बीच में डले हैं तो इसमें कोशिश ऐसी करें कि जिसमें शर वाली बात ना पैदा हो। मेरा हमारा वास्ता तल्लक हमदर्दियां सारी उस घर में है। मार्केट में जो सुलह की बात चल रही है मैं उस हवाले से कह रहा हूँ। हाँ, अगर कोई रास्ता बनता है, कोई दूसरी तीसरी उनमें लचक नजर आती है तो इंशाअल्लाह ताला कहने की जरूरत नहीं होगी, हम इंशाअल्लाह ताला बीच में अपना किरदार हलाली किरदार अदा करेंगे। जो कि अगर मुझे उनमें नजर आया, नहीं आया तो हम अड्डे वालों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मुंह से मैं उनको सुलह का नहीं कह सकता, उनका हुआ नुकसान। बाहर अगर जो बात चल रही है टीफी भट्ट और दूसरे तीसरे बंदे जिस तरह वफद की शक्ल में ये गवर्नमेंट की तरफ से गया है, यहाँ पसीन पिंड वालों की तरफ से गए, कैसर भाई को लेकर गए हैं, लेकिन कैसर भाई को मुस्बत किरदार बीच में अदा करना चाहिए। लेकिन बलाज की सुलह क्यों ना हो सकी? और 2 घंटे जो टीफी भट्ट के घर बैठकर बात हुई उसके बारे में भी मियां बिलाल का ये कहना है कि अगर अमीर मसहब टीपू चाहे तो मैं उसको वो सारी बातें बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर अमीर मसहब इस सुलह के लिए राजी है और अमीर फतेह राजी है, उसकी वालदा उसके दोनों
दोनों दादा इस सुलह के लिए राजी हैं, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर फिर कोई दाएं बाएं आगे पीछे वाले लोग इस सुलह में नाकामी पैदा करने की कोशिश करेंगे अपनी जात की खातिर, तो अब अमीर मजहब को ये सोचना चाहिए, अपने दाएं बाएं और अपने अच्छे दोस्तों की पहचान करनी चाहिए, और कोई भी कदम उठाने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्या आगे जो बच्चे हैं उनको ये दुश्मनी विरसे में दे के जाएंगे। जिस तरह अमीर बलाज टीपू ये नहीं चाहता था कि वो अपने बच्चों को ये दुश्मनी विरसे में दे के जाए, इसीलिए वो सुलह के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, और वो भी ये जान चुका था कि अमीर बलाज टीपू के वालिद और उसके दादा के कत्ल में बहुत सी गलत फहमियां थी। लेकिन सुलह से पहले ये तीफी भट्ट का बयान है, उसने अमीर बलाज फतेह को ये बताया था कि तुम्हारे बाप के कत्ल में मैं बेगुनाह नहीं हूं। ये भी बहुत बड़ी बात थी, ताकि सुलह अगर हो तो फिर चैनमन सुलह हो। लेकिन बहुत से लोगों ने फिर शरारत की। अब जिस तरह जफर ने भी कहा, मैं जफर के साथ मिलकर ये मुतफिका तौर पर कहता हूं कि बिल्कुल अमीर बलाज टीपू ग्रुप का जो है वो काफी नुकसान हुआ, लेकिन सुलह से बड़ी कोई चीज नहीं। नाज़रीन, आपने ये तमाम हकायक जाने देखे सुने। अब आपको हम वो वीडियो दिखाते हैं जो कैसर भट्ट की जावेद भट्ट के कत्ल से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसको इस मिसल का हिस्सा बना लिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है पुलिस अफसरान की तरफ से कि ये ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। इस बयान की वजह से भी अमीर मसहब और अमीर फतेह उनको प्रोवोक किया गया। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। और मैं इसका बदला तुमसे लूंगा। वो इसका क्या हुआ, ये कौन से बदले ले रहा है लोगों से? क्या टीपू पहलवान ने इसका बेटा मार दिया था? क्या बलाज ने इसका बहनोई मार दिया था? क्या क्या हुआ इसके घर के? किसी ने कुछ भी किया इसके घर के साथ? इतने घर उजाड़ दिए इस इंसान ने। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखी कैसर भट्ट की वो वीडियो जो जावेद भट्ट के कत्ल से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कैसर भट्ट जो अपने आप को अमीर बलाज का बेहतरीन दोस्त कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि अरसा दराज से टीपू ग्रुप के साथ कैसर भट्ट की दोस्ती है। लेकिन फिर सवाल यही पैदा होता है कि अगर इस तरह की वीडियोस जारी करनी थी कैसर भट्ट ने, तो फिर तीफी भट्ट के घर जब सुलह के लिए गए तो वहां पर अपना किरदार क्यों अदा नहीं किया। जफर खान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उससे इस हवाले से बात करते हैं। और जो शर फैलाने की कोशिश करेगा और सुलह के नाम पे शर फैलाएगा, उसको भी अल्लाह ताला खुद पूछेगा। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। दुबई में ये सुलह के लिए कोशिश की जा रही है, अब ये कहां तक पहुंचती है हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट रखेंगे। अल्लाह हाफिज।